جب مولا سے پوچھا کہ مولا اللہ کہاں ہے، تو مولا نے فرمایا کہاں تو اس سے پوچھ کہ جس کی نظروں سے اللہ غائب ہوا ہو۔ ایسا ہے نا؟ تو یہ بھی آپ جانتے ہیں، یہ بھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا، فضیلت کا جملہ کہنے لگا، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ سرکار علی اکبر امام حسین کی آنکھوں کا نور تھے، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا یہ بات پہلی تو میں آپ کو بتا دوں کہ آل محمد کے ہاں کوئی بھی ایک جملہ کسی کی فضیلت کے لیے جب نکلتا ہے تو وہ لاڈ پیار بشریت والا نہیں ہوتے۔ آل محمد اور امام جو جس کا مصداق ہوتا ہے، جو جس کا حامل ہوتا ہے، اسے وہی ٹائٹل عطا کرتے ہیں معصومین، کیونکہ امام حسین اللہ کی حجت کبریٰ ہے، زمانے میں اس وقت سب سے بڑی حجت ہے۔ امام حسین کے اندر اس وقت دو حجتیں، امام سجاد بھی ہیں، امام باقر بھی ہیں، ویسے اور بھی حجتیں ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو مسئلہ ہو جائے، میں وہ بات نہیں چھیڑنے لگا۔ امام سجاد اور امام باقر یہ دو حجتیں اس وقت امام کے تحت ہیں، اور امام کی نظروں کا نور کون ہے؟ علی اکبر، اور امام کیا فرما رہے ہیں؟ میری نظروں سے وہ غائب ہی کہا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر حسین جیسا امام بھی اس کو دیکھنا چاہے تو وہ علی اکبر کے ذریعے نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھ لیجیے مل کے۔ یہ بات بس میرا موضوع آج کا یہی تھا کہ ان کو دیکھ لینا اللہ کو دیکھ لینا۔ اور یہ کتنی بڑی کریمی ہے اس خاندان کی کہ وہ صرف ہماری ہدایت کے لیے عالم انوار سے اس عالم ناسوت کے اندر ہیں۔ اگر سوچا جائے، دیکھا جائے تو سب سے بڑی جو تکلیف آل محمد نے اٹھائی ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اس عالم انوار کا، اس جنت کا سارا کچھ چھوڑ کے اس دنیا میں، اس دار فانی میں، اس تکلیفوں والے گھر کے اندر صرف اور صرف مومن کی ہدایت کے لیے آئے۔ اور اگر وہی مومن ان کی معرفت حاصل کرنے میں سستی کر رہا ہو تو امام کے دل پر کیا گزرے گی؟ امام بہت زیادہ غمزدہ ہوئے۔ ہمارے زمانے کے سلطان 40 برس جس امام نے لہو رویا، آپ جب اس کا ذکر سنتے ہیں تو آپ کا جگر ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ میرے مولا زمانے کے امام 1350 سال سے لہو رو رہے ہیں۔ آج کی یہ مجلس عزا مولا حسین کے ایک صحابی جن کا نام ہے حر بن یزید الریاحی، عزادارو لشکر یزید کے ایک دستے کے سپاہ سالار جناب حر ایک مقام پر امام حسین کی باغ روکی تو ناکے سے نبی زادیوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ حر کی کانوں نے یہ آواز سنی، دل دہل گیا، لیکن اس کے بعد مہار چھوڑ دی۔ مولا سے کہا مولا میں سختی نہیں کرنا چاہتا۔ جب امام نے حر سے یہ کہا نا عزادارو کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو حر نے ایک جملہ کہا اور یہی جملہ حجت کو اتنا پسند آ گیا کہ اس کی ہدایت کا باعث بنا۔ حر نے کہا مولا آپ میری ماں کا نام اس طرح لے سکتے ہیں، مگر میں تو آپ کی ماں کا نام بغیر درود پڑھے لے ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ امام نے تمام لشکر کو حر کے سیراب کیا، مشکوں کے دہانے کھل گئے، ان کے پیاسے فوجیوں کو نہیں بلکہ ان کی سواریوں کو بھی سیراب کیا۔ روایت میں لکھا ایسا کریم ہے حسین کہ جب تک ان سپاہیوں کے گھوڑوں نے 3 دفعہ پانی سے منہ نہیں ہٹایا تب تک امام نے ان کو منع نہیں کیا۔ فرمایا کہ جتنا چاہتے ہیں انہیں پانی پلاؤ، کیوں نہ پلاتا ساقی کوثر کا بیٹا جو ہے۔ عزادارو جب حر کا لشکر کربلا پہنچ گیا،
मौला के खैमे लग गए। 10वीं की रात जब आई है, अज़ादारों यानी 9 की रात है, अगले दिन सुबह 10वीं होने वाली है, तो एक मर्तबा तमाम जितने भी फौजी सरदार थे उनकी अजवाज और उनके बच्चे बच्चियां नहर फुरात के किनारे, क्योंकि अक्सर शाम को अरब में जब शाम हो जाती है तो हवा ठंडी चलने लगती है, और तराई के करीब तो और ज़्यादा अच्छा मौसम होता है, हवा ठंडी चलती। तो दिन भर की गर्मी से सताए हुए उन फौजियों की बीवियां बच्चे नहर के किनारे से जब वापस अपने खैमों में गए तो एक मर्तबा उस तरफ से गुजर हुआ जहां गरीब ज़हरा के खैमे लगे हुए थे। एक मर्तबा हुर की बेटी और हुर की ज़ौजा ने एक मंजर देखा कि सियाह खैमे लगे हुए हैं, उन खैमों के बाहर एक जवान खड़ा है जिसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है। देखती हुई उस खैमे की तरफ बढ़ी, या एक मर्तबा दूर से आते हुए सरकार अब्बास ने देखा और कहा, आओ मेरे भाई हुर की ज़ौजा, आओ मेरे भाई हुर की बेटी, मैं अब्बास तुम्हारा इस्तकबाल करता हूं। ये कहकर बड़ी इज्जत के साथ खयाम के अंदर ले गए। अज़ादारों जब अंदर गई हुर की बीवी और बेटी, क्या देखा कि अंदर बड़ी इज्जत माँ बीबियां बैठी हुई हैं। एक बच्चा है जो झूले में है, जो प्यास के सबब से कभी दहन खोलता है, कभी दहन को बंद करता है। एक 4 साल की बच्ची हुर की बेटी के करीब आके कहती है, ऐ मेरी बहन, अपने बाबा हुर से और मेरे चचा हुर से बस इतना कहना कि चचा हुर, आपने पानी तो बंद कर दिया है, मेरा भाई अली असगर बड़ा प्यासा। अजरो को मेरा अल्लाह, शर्म करके ना रोया करो ज़हरा की गुर्बत। ज़हरा के बच्चों की गुर्बत पर अगले साल तो वही रोएगा जो जिंदा रहेगा। अदादारो, फिर एक बीबी आगे बढ़ी, कुछ तोहफे तहाइफ दिए। फिर दूसरी बीबी आगे बढ़ी, उसने तोहफे दिए। बड़े प्यार और मोहब्बत से तोहफों के साथ हुर की बीवी और बेटी को रुखसत किया। बीवी और बेटी जब वापस हुर के खैमे में आई, या एक मर्तबा दोनों माँ बेटियां हुसैन के घराने की करीमी का जिक्र कर रही कि हुर दाखिल हुआ। दोनों माँ बेटियां बात करते करते रुक गई। हुर ने कहा, क्या बात कर रही थी? और इससे पहले कि मैं ये पूछूं कि क्या बात कर रही थी, आज तुमने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? या एक मर्तबा हुर की बेटी ने तेवर बिगाड़ के कहा, बाबा तू नबी की आल की इज्जत भूल गया, हम तेरी इज्जत भूल गई है। हुर ने कहा, वाकया क्या हुआ है? तमाम माजरा बयान करके जब एक मर्तबा हुर की ज़ौजा ने ये कहा कि ऐ हुर, तुझे हुसैन की बहन ने सलाम भेजा। हुर तड़प गया और कहा, है अली की बेटी इतनी गरीब हो गई, अब मुझ जैसे गुलामजादे को भी अली की बेटी सलाम भेजेगी। तमाम रात बड़े तजब्जब में गुजारी हुर ने। फजर हुई, सुबह हुई। रिवायत में लिखा है कि सबसे पहला लश्कर में जाने वाले जनाब हुर थे। फजर होते ही जनाब हुर ने अपने गुलाम को आवाज दी, ऐ गुलाम, मैं तुझे आजाद करता हूँ। आका खैरियत? हाँ, मैं अपने आप को बहुत देर से दोज़ख और जन्नत के दरमियान में महसूस कर रहा था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि हुसैन हक है। मैं हुसैन की तरफ ही जाऊंगा, चाहिए मेरे बच्चों को मार दे, मेरा घर जला दे, मैं बर्बाद हो जाऊं, लेकिन मैं रसूल खुदा के सामने सुरखरू होना चाहता हूं। मैं अली के सामने सुरखरू होना चाहता हूं। मैं रसूल की बेटी के सामने सुरखरू होना चाहता हूं। ये कहकर हुर चले, पीछे पीछे गुलाम चला, पीछे पीछे बेटा चला। हुर की ज़ौजा और बेटी भी साथ साथ चली। एक मर्तबा हुर ने अपने गुलाम से कहा, है गुलाम, ऐ गुलाम, तू मेरी आंखों पर पट्टी बांध दे, मेरे हाथों पे रसन बांध दे, और मुझे ऐसे लेके चल जैसे मुजरिम को अदालत में पेश किया जाता है। अदादारों, एक मर्तबा हुर के हाथ बांधे गए, आंखों पे रुमाल बांधा गया। जैसे ही हुर वहां से चले, एक मर्तबा अल्लाह की रहमत को जोश आया। मौला हुसैन ने कुर्सी छोड़ी और कहा, ऐ अली अकबर, ऐ अली अकबर, तुम हुर के बेटे को गले लगाना। ऐ अब्बास, तुम हुर को गले लगाना। रह
गया गरीब ज़हरा तो मैं हुर के गुलाम को गले लगा के कहूँगा, ए भाई तेरा बड़ा शुक्रिया है कि जो इस गुर्बत में गरीब ज़हरा की नुसरत के लिए आया है। अज़ादारो एक मर्तबा जैसे ही मौला ने हुक्म दिया था वैसे ही मेरे मौला ने इस्तकबाल किया। अज़ादारो कितना बड़ा जुमला है, कितना बड़ा जुमला है कि मुजरिम पशेमान होते हुए कदमों पे गिर के कहता है, मौला क्या मेरी गलती माफ हो सकती है? या मेरे मौला ने वो जुमला कहा जो आज तक आसमान पर चमक रहा है। मौला ने फरमाया, ए हुर मुझे पशेमान न कर। अरे गरीब ज़हरा ने तुझे उसी वक्त माफ कर दिया था जब तूने मेरी माँ का नाम अदब से लिया था। अज़ादारो ये कह के हुर ने कहा, ए मौला मैं चैन से मर नहीं सकता जब तक मैं अली की बेटी से माफी न मांग लूं। मौला मैंने सुने थे अली की बेटियों के बैन जब मैंने आपके लगाम फरस में हाथ डाला था। मौला ने फरमाया, आ हुर मैं तुझे अली की बेटी के पास ले चलूं। अज़ादारो खैमे के दर पर आए। मेरे मौला ने आवाज दे के कहा, ए अली की बेटी आपका भाई हुर आया है। इधर से हुर ने कहा, आजादी मुझे माफ कर दे। उधर अली की बेटी ने कहा, भाई मुझे शर्मिंदा न कर। अरे आज अगर मदीना होता तो मैं तेरी मेहमान नवाजी करती, मगर आज ज़ैनब इतना वादा करती है हुसैन के लाशे से पहले तेरे लाशे पर बाल खोल के ज़ैनब बैन करेगी। ये ज़ैनब का वादा है। अज़ादारों को हुर ने इतना सुना, एक मर्तबा कहा, मौला मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपने बेटे को आप पे कुर्बान करूं। मेरे मौला ने इजाजत दी। कहा, अली बेटे आओ मैं तुम्हें सवार कराऊं। हुर के बेटे का नाम अली है। इधर हुर का बेटा चला। रिवायत में लिखा है, अज़ादारों अगर किसी का जवान बेटा हो, बाप बूढ़ा हो और उसका बेटा गिर जाए तो आप सोच सकते हैं कि बाप कितनी तेजी से दौड़ा होगा। इधर हुर के बेटे ने जीन छोड़ी, उसने सलाम किया, इधर हुर दौड़ा। अब जो हुर अपने बेटे के लाशे पे आया, हुर ने क्या देखा? हुर की हैरत की इंतहा न रही कि हुसैन हुर के बेटे की लाश पे हुर से पहले पहुंच गए हैं। उसका सर दानू पे रखा हुआ। अब जो एक मर्तबा हुर आगे बढ़ा, इमाम हुसैन ने खड़े होकर हुर के सीने पे हाथ रखा और हुर को पीछे किया। हुर का चेहरा गर्द हो गया। उसने कहा, मौला मुझसे कोई गलती हो गई है। मौला ने फरमाया, नहीं हुर तू अभी अभी आया है, तू मेरे नाना की शरीयत नहीं जानता। तू नहीं जानता नाना की शरीयत में है कि जवान बेटे की लाश बूढ़ा बाप न उठाए। इधर मौला ने ये जुमले कहे। मैं आपसे कहता हूँ, मैं करबला रुक करके कहता हूँ, ऐ मेरे आका यही जुमले जो आपने हुर से कहे अकबर के लाशे पे कितना याद आए हो। अरे मौला यही जुमले असगर के लाशे पर कितना याद आए होंगे। अरे क्या गरीब हो गया ज़हरा का लाल कि जिसने अपने सहाबियों को बेटों की लाशें नहीं उठाने दी। कोई अकबर की लाश पे कह रहा था, अब्बास मैं अकबर का लाशा उठाने लगा हूँ, आ मेरी मदद को, आ मेरे हबीब, मैं अकबर का लाशा। अज़ादारों अभी हुसैन ने पुकारा ही था या ज़ैनब की आवाज आई, किसी को न बुला, मैं ज़ैनब अकबर का लाशा। आखिरी जुमला है, खत्म हो गई मजलिस। बेटे की लाश उठा कर लाए। हुर ने कहा, आका बस हम मुझे इजाजत दीजिए, मैं लड़ता हूँ। हुर ने बड़ी तवील जंग की, बड़े मलूलों को फिन्नार किया। रिवायत में लिखा है, एक मलूल बत्ताताई ने जनाब हुर को नेदा मारा। जनाब हुर के ऊपर नेदा लगना था, जीन छूटी, तलवारों के वार हुए। इसने मौला को निदा दे के कहा,
مولا میرا آخری سلام قبول ہو. آپ کا غلام گر گیا ہے. عزاداروں جیسے ہی مولا حسین ہر کے لاشے میں پہنچے, روایت میں لکھا ہے سر پہ بڑا شدید ضرب لگی تھی, لہو بہ رہا تھا. یا حسین نے اپنی ماما فاطمہ زہرا والا رومال نکال کے ہر کی پیشانی پہ باندھ دیا. ہر کی پیشانی پہ باندھنا تھا. یا رسول خدا کی آواز آئی, انبیاء کی آواز آئی, اے ہر تجھے مبارک ہو, تیرے سر پہ وہ امامہ بندھ گیا ہے, اب ہر نبی تجھے جھک کے سلام کرے گا. رسول خدا آگے بڑھے, علی آگے بڑھے. ارے رسول خدا نے جام پیش کیا. بی بی زہرا نے کہا وہ میرے بچے پر قربان ہونے والے, میں زہرا تیرے استقبال کے لیے آ گئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.